Good morning, students. In continuation with the previous video, class 11th physics, chapter 2, units and measurement, we have done how to write the dimensional formula for different physical quantity. Let us recapitulate and continue with the topic. In the previous video, we have done the how to express the physical quantities of how to express the dimension of physical quantities. They are all the physical quantities. Before that, you have to make the table having the 4 columns 1, 2, 3 and 4. You have to write in the first column about the physical quantity, formula for the physical quantity, unit for the physical quantity, and how to write the dimensional formula. Area, length into breadth, unit हो जाएगी meter square, and the dimensional formula is length can be expressed in the meter can be expressed in the length. So dimensional formula is m0 l2 t0. Like this, we have done the volume, density, speed or velocity, acceleration, force and impulse. We have done all these things, how to get the dimensional formula in our previous video. Let's continue with some more examples. Now there is the physical quantity, formula, unit and dimension. You have to make the 4 column like this. Now start with the new example of physical quantity. Let's talk about work. Work का formula रहता है force into displacement. Unit रहेगी Newton per meter. Now to get the dimensional formula for work, if you don't know formula for force, तो you can solve it further. Force का रहेगा आपका formula mass into acceleration and displacement. So with the help of this formula, I'm going to write the dimensional formula for work. So mass can be represented in m. एक्सेलेरेशन यूनिट रहती है एक्सेलेरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलेरेशन के लिए रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स मीटर दैट फॉर एल पर सेकेंड स्क्वायर t -2. Then the bracket close. And displacement is again a length, so it can be represented by L. Now combining all these three, मास विल बी m और कहीं आपका मास नहीं है तो पावर 1 ही रहेगी. नाउ l, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड. तो बेस यहाँ पे भी l की पावर 1 है और यहाँ पे भी l की पावर 1 है. देन यू जस्ट ऐड देयर पावर. तो 1 + 1 इज 2 and time only t -2. So dimensional formula for work is m l square t -2. Let's take other example, pressure. The formula for pressure is force upon area. ठीक है, और इसका यूनिट रहता है पास्कल या फिर न्यूटन. इफ यू डू इट फ्रॉम हियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. If you know directly the formula for force, you can do it. Otherwise, if you doesn't know the dimensional formula, you do it from here. Force को क्या लिखते हैं हम? Mass into acceleration. Do it in a simpler way. Area. Now with the help of this, I'm just writing the dimensional formula. Mass का आपका m हो जाएगा. Acceleration again unit रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT -2 अपॉन एरिया. एरिया की यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर. नाउ जस्ट सॉल्व इट. m एज इट इज रहेगा आपका पावर 1. अब L की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है. व्हेन इट मूव बेसिस आर सेम तो पावर विल बी एडेड. तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा +1. आई एम जस्ट सॉल्व इट फॉर यू. इसकी 1 है और ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी और t एज इट इज.
प्लीज़ डू इट बाय स्टेप, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 - 2 इज -1 एंड t का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल m l t -1 t -2 dimensional formula for pressure. Let's take more examples. See dimensional formula for energy. All type of energy. It is a potential energy or the kinetic energy. किसी तरह की energy it is a form of work. तो work की जो आपकी units रहेंगी, this is work is a form of energy. तो that is force into displacement ही रहेगा इसका। तो इसकी जो रहेगी that is m l square t -2 that we have done in the वर्क। तो जितनी तरह की भी आपकी एनर्जीज रहेंगी वो आपका सेम डायमेंशनल फॉर्म रहेगा m l square t -2। नाउ विच इज अ इम्पॉर्टेंट वन आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो जो फॉर्मूला रहता है ग्रेविटेशन लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 तो मासेस है और r स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू मासेस। तो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द G। तो G कैसे निकालेंगे? G इज इक्वल टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस F r स्क्वायर, F इज द फोर्स अपॉन m1 m2। यहाँ पे F क्या है आपका? फोर्स है एंड m1 m2 क्या है? मास है और r क्या है आपका? डिस्टेंस। ठीक है। नाउ द यूनिट फॉर G क्या रहेगी? यू कैन ड्राइव इट फ्रॉम हेयर ओनली। यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इफ यू नो द फॉर्मूला फॉर फोर्स यू कैन डायरेक्टली पुट इन दिस फॉर्मूला, अदरवाइज फोर्स को भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एयर ओनली, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का होगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt -2। ये तो हमने फोर्स के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब लेंथ, l स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m2 मतलब m1 मास 1 और मास 2। सॉल्व इट। m आपका यहाँ पे 1 है और नीचे 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? m का पावर -1। l आपका यहाँ पे 1 है और l आपका यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 इज 3, l3 एंड t यहाँ पे ओनली t -2। Now this is the dimensional formula for universal gravitational constant is G। ये एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। Now next we'll take it as a power। पावर का रहेगा वर्क डन बाय यूनिट टाइम। तो अगर आपको वर्क डन का पता, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का वर्क डन का ऐसे जूल्स रहता है यूनिट। नाउ वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन lt -2। फोर्स का हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट l अपॉन टाइम t। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? m l + l इज l2 और t -2, यहाँ पे t 1 है तो ऊपर जाएगा t -1 और हो जाएगा, तो t -3 हो जाएगा। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। Now next I'll take it as a surface energy।
सरफेस एनर्जी के फॉर्मूला रहता है फोर्स अपॉन लेंथ. यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज. अगेन सरफेस एनर्जी इज, दिस इज न्यूटन पर मीटर रहेगी इसकी यूनिट. तो फोर्स की हो जाएगी mLT-2. अभी हम कर रहे हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन अपॉन लेंथ. लेंथ इज योर L. तो यहाँ पर हो जाएगा m. अब यहाँ से L से L ऊपर 1 है, नीचे से आएगा तो -1. L to L कैंसिल आउट, तो यहाँ पे L 0 हो जाएगा. m1 L 0 T-2. इज दैट क्लियर हाउ इट इज सॉल्व इट? मास, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन. मास के लिए m, एक्सेलेरेशन L-T-2, नीचे लेंथ है. व्हेन यू सॉल्व इट तो m एज इट इज आएगा. L से L कैंसिल आउट कर सकते हैं. और व्हेन यू सॉल्व इट ऊपर 1 है, नीचे से जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो पावर आपकी 0 हो जाएगी. तो यू कैन राइट m L0 T-2. Let's start with the new physical quantity. I'm just taking the thrust. You have done the thrust. Thrust मतलब क्या होगा आपका? फोर्स ही रहता है. फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो थर्स्ट का भी डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा. तो इट इज यूनिट, इसकी न्यूटन्स रहेंगी. दैट इज मास इज योर m, एक्सेलरेशन L-T-2. तो थर्स्ट का फॉर्मूला रह जाएगा विच इज ऑल्सो अ फोर्स m L-T-2. This is the thrust. Now I am taking example of stress. Stress is actually a pressure. This is formula for pressure is force upon area. That is Newton per meter unit रहेगी. तो force के लिए we already have done, that is mLT-2 and area is your L square. When we solve it, mLT-1 and T-2. This is the dimensional formula for stress. Now strain. ये आप स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो इट इज यूनिट क्या रहेगी इसकी? बिकॉज इट्स अ रेशियो, इट्स एक्चुअली अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है? चेंज इन लेंथ, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ क्या है? वो भी आपकी लेंथ है. तो इन दिस केस बोथ द लेंथ आर कैंसल आउट. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका यूनिट हो जाएगी दैट बिकम 1. तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसमें? m यहाँ पे है नहीं तो m टू पावर 0. L यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो अगेन द पावर इज 0. और t तो ऑलरेडी था ही नहीं इसमें, दैट इज अगेन द पावर ऑफ 0. सो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, यू हैव टू राइट 1 or 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. तो जितनी भी रेशियोज रहती हैं फॉर्मूलेस में, जितने भी रेशियोज आपको मिलेंगी इन डिफरेंट फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे स्ट्रेन रेशियो है, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ. तो ये इसकी यूनिट भी कोई नहीं होती, नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट, क्योंकि यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है आपकी. There is one more example for this. This is your angle. Angle मतलब I'm talking about थीटा की बात कर रहे हैं हम. तो एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियस। यही आपने पढ़ा हुआ है अपना आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक्चुअली क्या है आपका? आर्क इज योर लेंथ और रेडियस भी क्या है आपका? इज अगेन लेंथ। तो यहाँ पे भी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगेन 1, अगेन इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। m0, l0, t0, अगेन इट इज dimensionless quantity. But angular velocity, it is denoted by omega. Omega is a sign, तो omega होता है angular displacement अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने क्या था? दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एंगुलर वेलोसिटीज, सॉरी, थीटा अपॉन ओमेगा is equal to theta upon time. This is your angular displacement, theta upon time. तो angular displacement आपका था, this is your angular displacement theta, that is 1 upon time. तो इसकी डायमेंशनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? m0, l0, t-1, बिकॉज टाइम है। ठीक है, I'm going to take one more example. Now I'm taking frequency. Frequency होती है number of vibration per second. तो number of vibration is a number है, तो number doesn't have any number. तो that is क्या रहेगा इसका dimension? that is 1 upon t रहेगा। टाइम पीरियड रहता है फ्रिक्वेंसी, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस इन MLT फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका 1 अपॉन टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0, l0, t-1। सो यू कैन सी दैट angular velocity and frequency, they are having the same dimensional formula. This type of question will also ask in your exam. Name the physical quantities, any two physical quantity which is having the same dimensional formula. तो आप उसमें angular velocity का लिख सकते हैं and frequency का, इन दोनों का formula same है। And the question will be asked in your exam also. Write the dimensionless quantity, तो उसमें आप strain का लिख सकते हैं dimensionless, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी लिख सकते हैं डायमेंशनलेस। सो आई एंड अप द सेशन टुडे। आई हैव सेंड सम मोर formulas for the practice in your ERP. Go through these all formula. You have to do this work in your notebook, and I want to see your all the work in the notebook. Please practice these formula because it is very important and it will come in your exam. Good day.